Good morning, class 7th. Yesterday we have completed the lesson up till here. We are reading the lesson 3 Visions for India at page number 48, section 1 of unit 3. Unit 3, section 1, page number 48, 3 Visions for India. So this is a lesson regarding the Dr. Kalam. And half of the lesson I have explained up to DRDO. So here he is telling about his 3 visions for India, whatever he has thought, 3 visions, whatever he has imagined for India. And here we were talking about is that he was born on 15th October 1931 in island town of Rameswaram in Tamil Nadu, and his father was a boat owner. They were from a poor family and who had to rent out his boats to pay his son's school fees. And Abdul Kalam studied at the elementary school and at the Schwartz High School in Ramanathapuram. And as a young boy, he used to distribute the newspapers also in order to add to his family income. Means he was a hard-working boy. So after graduating in science from the St. Joseph College in Tiruchi, he enrolled for the aeronautical engineering. Aeronautical, as you know, that is the science or the practice of building and flying aircraft and similar other vehicles at the Madras Institute of Technology. So in 1958, Kalam joined the Defense Research and Development Organization, DRDO. You should learn this because it can be a 1-mark question. What is the full form of DRDO? So you should all be very careful. Whatever I am underlining in the lesson, it is not necessary that the question should come from this back exercise only. You can be asked questions from the in between the lesson. आपको lesson के अंदर से भी मैं question डाल सकती हूँ. So listen to me whatever I am explaining. Okay, each and every word and line. So later in 1962, he moved on to Indian Space Research Organization, ISRO. Now again, it's a full form, Indian Space Research Organization. It is ISRO. You have to learn all these full forms carefully, okay? Satellite and the Satellite Launch Vehicle Team in 1963. So after working there for almost 20 years, he worked there for 20 years and he returned to DRDO in 1982 as a director. And then he came back in this organization Defense Research Development Organization, as a director and took the charge of Guided Missile Development Program. In 1992, he was appointed scientific advisor to the Union Defense Minister. And his crowning moment as a scientist, however, came in 1998 when he conducted India's first nuclear test. And this was the crowning moment for him when he was appointed as the scientific advisor. It is a very big achievement to the Union Defense Minister. और उसके बाद मोस्ट क्राउनिंग मोमेंट होता है बच्चे, सबसे बड़ा अचीवमेंट आपका लाइफ का. क्राउनिंग मीन्स इतना बड़ा अचीवमेंट कि आपको ऐसा फील हो कि यस यू आर क्राउंड फॉर दैट. So that crowning moment was in 1998 when he conducted India's first nuclear test. So with this, Dr. Kalam has this to say about his achievement and his career. And now what he is going to say about his achievements and career. I see 4 milestones in my career. अब वो अपने करियर के बारे में बता रहे हैं कि मेरे करियर में 4 माइलस्टोन्स हैं. माइलस्टोन्स बच्चे इंपॉर्टेंट स्टेजेस होते हैं, इवेंट्स होते हैं आपके कैरियर में, जो कि आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट ले आते हैं. फर्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या था उनका? द फर्स्ट वाज 20 years I spent in ISRO, where I was given the opportunity to be the project director for India's first satellite launch vehicle. वहाँ पे इन्होंने ISRO में 20 years जो काम किया, ये इनका पहला माइलस्टोन था. एंड ही वॉज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू बी द प्रोजेक्ट डायरेक्टर. वहाँ पे ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे फॉर इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3.
While here we launched the satellite Rohini, these years were of great significance. और ये 20 years में जब वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे वहाँ पे इंडिया की फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के लिए, वहाँ पे ये जो साल थे उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, ग्रेट सिग्निफिकेंस. सेकेंड माइलस्टोन, ये फर्स्ट माइलस्टोन था, ये सेकेंड माइलस्टोन वॉज व्हेन आई रिटर्न टू DRDO. फिर 20 years काम करने के बाद इसरो में वो DRDO में वापस आए. गॉट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम. यहाँ लिखा है ना, ये देखिए. लेटर ही मूव टू ISRO and satellite team in 1963, and after working for almost 20 years returned to DRDO. The same thing he is written here that पहले उन्होंने ISRO में 20 years काम किया, उसके बाद वो DRDO में वापस आए. got a chance to be a part of India's guided missile program. It was a bliss for the second time when the Agni missile met its mission requirements in 1994. और उसके बाद उन्होंने वहाँ से अग्नि मिसाइल भी वो की है, लॉन्च की है. सेकेंड टाइम द अग्नि मिसाइल मेट इट्स मिशन, मीन्स ये मिशन भी उनका पूरा हो गया इन 1994. इट वॉज अ ब्लिस, मीन्स बहुत बड़ी खुशी की बात. टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 50. Now comes the third milestone, was when the Department of Atomic Energy and DRDO worked together. जब ये दोनों Department of Atomic Energy और DRDO they worked together during the nuclear tests on May 11 and 13, 1998. ये इनके लिए third milestone है. The joy of participating with my team in these nuclear tests, proving to the world that India can make it big. And that we are no longer a developing nation made it big. That I was very proud to be an Indian. इनका थर्ड माइलस्टोन ये बताते हैं तब रहा जबकि एटॉमिक एनर्जी का डिपार्टमेंट और DRDO दे वर्क टुगेदर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट्स. तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स दे वर्क टुगेदर ड्यूरिंग द न्यूक्लियर टेस्ट्स ऑन May 11 and May 13, 1998. सो द जॉय ऑफ पार्टिसिपेटिंग मीन्स इस टीम के साथ और न्यूक्लियर टेस्ट्स में पार्टिसिपेट करना और इंडिया को ये शो करना, प्रूव करना दैट वी कैन मेक इट बिग एंड वी आर नो लॉन्गर अ डेवलपिंग नेशन. ही फेल्ट सो प्राउड टू बी एन इंडियन. तो उस वक्त उन्हें अपने इंडियन होने पे बहुत प्राउड हुआ. In fact, Indian scientists have now developed a new very light material called carbon-carbon for the re-entry structure of the Agni missile, and that is something to be proud of. And moreover, उन्होंने बताया कि इंडियन साइंटिस्ट ने अब एक नया बहुत ही लाइट मटेरियल मीन्स हल्का, वेट में हल्का मटेरियल निकाला है जिसे वो कार्बन-कार्बन कहते हैं, कार्बन-कॉर्बन, फॉर द री एंट्री स्ट्रक्चर ऑफ अग्नि मिसाइल. अग्नि मिसाइल की री एंट्री के लिए, स्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एक बहुत ही वेरी लाइट मटेरियल निकाला है, कार्बन-कॉर्बन, एंड दैट इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ. और ये सच में उनके लिए बहुत प्राउड मूवमेंट रहा है. My fourth milestone was when one day an orthopedic surgeon from the Nizam Institute of Medical Science, Hyderabad, visited my laboratory. He came to my laboratory. Orthopedic surgeon होता है जो बोन्स का डॉक्टर होता है, ऑर्थोपैडिक, ओके, हड्डियों के डॉक्टर, बोन्स के डॉक्टर. When one doctor from Nizam Institute of Medical Science, Hyderabad, he came to visited his laboratory. He lifted the material we use for building missiles. तो उन्होंने ये मिसाइल्स के लिए जो बनाया था मटेरियल कार्बन-कॉर्बन, ये उन्होंने उठा के देखा और उन्हें वो बहुत लाइट लगा, मीन्स बहुत हल्का लगा. That he took me to his hospital and showed me his patients. तो उन्होंने वो मुझे अपने हॉस्पिटल ले गए एंड वहाँ पे उन्होंने मुझे अपने पेशेंट्स से मिलवाया. There were these little girls and boys with heavy metallic calipers, weighing over 3 kilogram each, dragging their feet around. तो उन्होंने अपने कुछ पेशेंट से मिलवाया, कुछ बच्चे थे, लिटिल गर्ल्स और बॉयज थी, जो अपने फीट के आसपास उन्होंने कुछ कैलिपर्स बांधे हुए थे. कैलिपर्स होते हैं बच्चे, एक मेटल का सपोर्ट होता है जो आपके पाँव के साथ
लगा होता है जिनके थोड़े से वीक लेग्स होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो उन्होंने दिखाया कि ये जो बच्चे थे उनके पैरों के आसपास जो कैलिपर्स बंधे हुए थे, जिस मटेरियल से बंधे हुए थे, वो मटेरियल इतना हैवी था कि एक एक टांग पे मतलब 3-3 किलो का वेट था, 3 किलोग्राम्स वेट। और वो बच्चे बेचारे अपना पैर उठा नहीं पाते थे उस वेट के कारण। उन्हें अपने पैर को ड्रैग करना पड़ता था, खींच के आगे लेके जाना पड़ता था। He told me, please remove the pain of my patients. तो उन्होंने मुझसे बोला कि इनकी जो पेन है प्लीज तुम रिमूव करो। In 3 weeks we made the floor reaction or orthosis 300 ग्राम कैलिपर्स। और हमने फिर क्या किया, 3 वीक्स के अंदर अंदर हमने एक ऑर्थोसिस बनाया, डिवाइस बनाया, विच इज फिटेड टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी टू सपोर्ट अ वीकनेस और करेक्ट अ डिफॉर्मिटी। उन्होंने एक कैलिपर बनाया ऑर्थोसिस मटेरियल से, जो कि बॉडी के बाहर लगता है सपोर्ट के लिए। जहाँ पे भी उनको वीकनेस है, लेग्स में वीकनेस है, तो लेग्स के पास उस स्ट्रक्चर को लगा दिया जाता था। और वो कितने ग्राम का था, सिर्फ 300 ग्राम्स का था। और कहाँ वो पूरे 3 किलो का लेके जा रहे थे एक पाँव पे। तो यहाँ इन्होंने 300 ग्राम्स का बना दिया, बहुत कम कर दिया। टुक देम टू द ऑर्थोपेडिक सेंटर, और वो अपना वो बनाकर ऑर्थोपेडिक सेंटर गए। चिल्ड्रन कुडंट बिलीव देयर आईज। और जब उन्होंने बच्चों को वो दिखाया सपोर्ट वाला ऑर्थोसिस, तो बच्चों की आंखों को विश्वास नहीं हुआ, वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पाए। From having to drag around a 3 kilogram load on the legs, they could now move around with ease. कहाँ तो वो 3 किलो का वेट अपने पैर पे लेकर घूम रहे थे, तो उनको पैर भी उठाया नहीं जा रहा था, इतना हैवी था। अब कहाँ उन्होंने इतना हल्का उनके पैर पे बांधा कि वो आराम से घूम रहे थे। और उनके जो पेरेंट्स थे उनको देख के उनकी खुशी से आंसू निकल आए। खुशी के मारे उनकी आंख में पानी आ गया कि अब उनके बच्चे कितना फ्री फील कर रहे हैं, हल्का फील कर रहे हैं। Their parents were very happy to see their children walk like this happily. So इनका ये 4th milestone था, ठीक है। आपको ये 4 milestones भी याद रखने हैं। I can ask you in questions. Why is the media here so negative? Why are we in India so embarrassed to recognize our own strengths, our achievements? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि हमारे इंडिया में हमने देखा है, हमारी कंट्री में जो हमारा मीडिया है, मीडिया क्या है बच्चे, जो टीवी में आपके नज़र आता है, जो टीवी में दिखाया जाता है, आप देखते हैं, रोज़ न्यूज़ देखते हैं, उसमें न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में अक्सर आपको कैसी न्यूज़ पढ़ने को मिलती हैं, जैसे एक्सीडेंट्स हो गए, रेप हो गए, देन मर्डर हो गए, ये सब बातें जिसको पढ़ के आपको लगेगा कि ये हम क्या पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन सा हो जाता है ऐसी ही न्यूज़ को पढ़ के। तो अब वो मीडिया की बात कर रहे हैं। मीडिया में बच्चे आपका टेलीविज़न, न्यूज़पेपर, मैगजीन सब कुछ आ जाता है, जिससे आपको पूरी वर्ल्ड की न्यूज़ मिलती है। दैट इज़ ऑल मीडिया। सो वाई इज़ मीडिया हियर सो नेगेटिव? नाउ ही आस्क्स अस, वाई आर वी इन इंडिया सो एम्बैरेस्ड टू रिकॉग्नाइज आवर ओन स्ट्रेंथ एंड आवर अचीवमेंट्स? He questions that why in India we are so embarrassed. Embarrassed means हमें शर्म आती है। Embarrassed means शर्म आना। अपने स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करने में, अपनी अचीवमेंट्स को दिखाने में हम शर्माते हैं। ये बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ये इंडिया में क्यों है ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया को हमारे स्ट्रेंथ्स को दिखाना चाहिए। यहाँ पे क्या हो रहा है इंडिया में कि हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को और अचीवमेंट्स को बिल्कुल दर्शा नहीं पाते हैं, आगे दिखा नहीं पाते हैं। तो ये वो पूछ रहे हैं हमसे।